Namaste ji, namaste. Welcome to Courtroom by TLOI. Today we have with us Akshat, NLU Odisha, rank 3, MHCT 100 percentile, so that's a rank 1. 4 people got a 100 percentile, so it will be a tiebreaker based on age, graduation marks, etc. But scoring a 100 percentile in MHCT 3 year LB is an achievement by itself. CUET PG 217. 217. We missed NLS by 1 mark. They did not put us on the wait list somehow. I just do not know what happens in that admission process, but any which way. So that is MHCT 3 year LB rank 1. NLU Odisha maybe I think he has the same marks as someone else above him. So again tiebreaker है वहाँ पे भी. But that's a rank 3 and then now let us have a discussion with him. हाँ जी, क्या हो गया अभी? अब एक यात्रा पूरी हो गई, 1 साल की संपन्न हुई तुम्हारी. And how does it feel now? It feels bittersweet. हाँ. क्योंकि NLS नहीं मिला. NLS नहीं मिला. But ठीक है sir. I did all I could and I think my result shows I did all I could. Yeah. बाकी I have always said कि you can do all you want and do your best and leave rest up to fate. That's what I did and the result shows. Sometimes you miss by 1 mark. It was मतलब he was one of the brightest students, almost all set to make it in. Perhaps couldn't make it through this year. Perhaps we'll try again. Perhaps next year. But we have CLC, GLC, and NLU Odisha. Yes, sir. All options are pretty much open. Now, to make this session useful for people watching, let us then go through each and every section. अब MHCT में तुम्हारे पास rank 1 है, so now you are the authority now to tell people, and you can be completely honest about it. तो वहाँ से शुरू करते हैं. Current affairs, Hulk file. Hulk file तो throughout exams. And NLSI, I'll be very frank and honest. NLSI was a total bouncer. उसमें भी कई hit हुए, 50 to 60% hit हुए. अरुंधति रॉय की वो movie तो भूल भी गए हम. Movie जितना मेरे को याद है, the movie got hit और ऐसे 50 to 60%. But NLU ओडिशा में सर आपने कितनी बार उस पर emphasis दिया था कि रशिया यूक्रेन war is 10 days after 14th February. पूछा गया. अच्छा, मैंने तो देखा नहीं. वो आया और बहुत MHCT में भी लाइक क्योंकि ऑफ कोर्स डायरेक्ट करंट अफेयर्स तो नहीं आएंगे. ये आया था वर्ल्ड WEF की नहीं ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट आती है ना, वो आई थी. अच्छा, ये MHCT का लास्ट क्वेश्चन था. आई नो फॉर अ फैक्ट. और ऐसी काफी करंट अफेयर्स थे जो हिट हुए हल्क से. एग्जैक्टली. बाकी फॉर मी पर्सनली जो NLSAT और इन सब के थोड़े हिट हुए थे वो थे मेरे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था. आई यूज्ड टू रीड इंडियन एक्सप्रेस डेली. तो उससे एक दो क्वेश्चंस, जैसे देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑन दिस गाय सम पद्मश्री अवार्डी. ही वाज अ BBC ब्रॉडकास्टर हु यूज्ड टू वर्क इन इंडिया. Mark Telly. He died. तो बहुत थोड़े, बट हल्क वाज द मेनस्टे ऑफ माय प्रिपरेशन. राइट. क्योंकि हल्क से बहुत क्वेश्चंस हिट हुए हैं. completely honest. Now what would you, so basically this we want to make this session as to fruitful as to कि अब you're talking to your younger self. All right. 1 year ago, before you joined any coaching, before you went into these waters, what do you advise to that guy? Coaching join कर लो. नहीं कोचिंग देख के ज्वाइन करियो. हाँ, बहुत देख के करियो. क्योंकि मैं तो वॉन्डरर रहा हूँ, बंजारा टाइप ऑफ पर्सन रहा हूँ. क्योंकि मैंने तो हर जगह का पानी चखा है, सब जगह पैसे तो देख के लो. देखो, द प्रॉब्लम इज सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 3 year LLB सीन इज नॉट दैट मच, क्योंकि ये पॉपुलराइज नहीं है, तो ऐसे बहुत जल्दी ऑनेस्ट फीडबैक नहीं मिलता है. व्हाट यू सर्च, गूगल पे सर्च करते हो आपकी 3 year LLB, whoever advertises the most you would think यही बेस्ट है. अगर कोई लिखा हुआ है बेस्ट, अगर 3 year LLB और कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है NLSAT के लिए, क्योंकि आई वाज ट्रूली मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने स्टार्टिंग में अपनी सर्च सिर्फ NLSAT से शुरू करी थी और दिखता नहीं है कोई ऑप्शन. तो फिर I won't name them, but मुझे एक वो दिखा, then I joined them. For the first few months I continued with them, and क्योंकि तब तो preparation शुरू ही होते हैं, जोश इतना होता है, and you are not really looking at the question paper, you are just looking at what they are teaching. Then I saw the question paper क्योंकि I asked them for it, and I saw कि whatever they are teaching, firstly the NLSAT paper is very intuitive. The part is very intuitive क्योंकि वो mostly reading comprehension, logical reasoning इन सब के पे based होता है, and that is what you have amassed and what you have learned since childhood. ये सब skills पॉलिश हो सकती हैं, क्रिएट नहीं हो सकती हैं. तो
you need a teacher who polishes them. अब वो हर दिन पॉलिटी हिस्ट्री और ये सब पढ़ के तो नहीं होगा. You have to have sessions curated for it. तो समझ आ गया कि नहीं, I'm not getting what I want from here. फिर I had a friend there who suggested me कि तू तो रामजस में ही है and there's a coaching, तब तो उधर ही थी, there's a coaching right next door. तो फिर मैंने सर से बात करने आया, मैं और my mother right after that coaching only. उस दिन ही एक दिन कोचिंग गया सुबह और उसके बाद ही we came to you. फिर we talked. उसके बाद फिर हाँ लगा कि make sense, maybe let's try this. And first I took the NLSAT only batch. उसके बाद convert किया. फिर क्योंकि मेरे को 2 महीने पहले पता चला ये CUET PG का भी नहीं पढ़ा रहे. अच्छा, दूसरे वाले. हाँ, क्योंकि हमारे बारे में बोल नहीं वो नहीं पढ़ा रहे थे. मैंने क्योंकि NLSAT only लिया था ना, क्योंकि वो करंट अफेयर्स वगैरह करा ही नहीं रहे थे, जीके स्टैटिक जीके थी नहीं. मैंने कहा दिस मेक्स अ सब्सटैंशियल पार्ट, मतलब कंप्यूटर और LR करा दोगे, बट जीके और ये सब भी तो कुछ ना कुछ तो बेस बनना चाहिए. देन आई जॉइंड सर कितने 2 हफ्ते पहले, और फिर वो 2 हफ्ते ही आई प्रिपेयर्ड एंड आई स्कोर्ड इनफ टू गेट इनटू CLC. अभी कल ही आया है उसका कट ऑफ. हाँ. And let us go to the portion of static GK. अब आपने एडवाइस करना है किसी को कि how to prepare for static GK. Sir, static GK, I don't think there's any master key about static GK. जो सर के नोट्स थे, that is Jujutsu and all. They were so, मतलब Jujutsu तो जय हो, crazy. कैसे हिट हुआ पता नहीं. Jujutsu was मतलब static GK sir, I think what you did was like जितना कर सकते थे उतना बहुत था वो. मतलब जब वो पढ़ने बैठते थे और उसको रिवाइज करने बैठता था मैं, इट यूज्ड टू टेक मी 2 days टू रिवाइज इट कंप्लीटली, है ना. तो उससे ज्यादा स्टैटिक जीके है, कितनी कर लोगे, क्या ही कर लोगे. अब इवेंचुअली देखिए, लाइक फॉर एग्जांपल इस साल के CUET PG का, आई वाज जस्ट गोइंग टू द क्वेश्चन पेपर yesterday because this year LC2's cut off dropped by like 23 marks and I was taken aback by this because this usually doesn't happen. I've been teaching for the DU LLB since 2019. And in my memory, this is the first time that the cutoff has lowered by 23 marks. It shot up by 24 marks in 2022 when a short scam happened in this exam. So I was going through the papers. Now they were basically asking sodium ka, I think, periodic table mein number. Now see, very frankly, that is we have not covered that. However, baki jo static GK hai, that is the endless ocean. It's just that a decade of experience से पता होता है कि ये कहाँ जाएगा. जैसे महाभारत, जैनिज्म, ये तक्षशिला, नालंदा वालंदा, ये सब मतलब पता रहता है कि यहाँ तक तो जाएगा. बट उसके बाद भी अगर 5-7 क्वेश्चन इधर उधर होते हैं, like I always say in class that it's almost like a 60-70% hit ratio. बिल्कुल सर. उसके ऊपर तो 30% तो आप भूल ही जाएं कि ये हो पाएगा. So vast. जैसे सोडियम वाला Na वाला क्वेश्चन था. I did not sleep before this. Do not do this. I'm telling you, I couldn't sleep. तो मेरे को जब घर जाके मैं पेपर देके सोया ना, तो फिर मेरे सोते सोते हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, और तब मेरे को याद आया कि स्कूल में रटवाया था इन्होंने मुझे. और ये ऐसे ही याद होते हैं. वो जब पेपर के बाद आते हैं तो कुछ क्वेश्चंस हिट होते हैं, क्योंकि this time the paper was actually lengthy. I did go through all my papers, but there was some maths question I could not मतलब क्योंकि उसमें टाइम लगता है, you need 2 minutes and I did not have it. तो मैंने जो easy pickings थे, जैसे एक उस पे आ रहा था, गवर्नमेंट की स्कीम पे आ रखा था, तो my strategy was कि पहले मैंने उसको नहीं छेड़ा, फिर मैंने कहा गवर्नमेंट का पेपर, गवर्नमेंट की स्कीम, अपने आप को तो गाली नहीं देगी. उसमें यही था कि क्या हमने इतने से ज्यादा करा है स्कीम में. मैंने कहा हाँ बिल्कुल करा है, तुम्हारा पेपर है. ऐसे ही सौ गया, वो सही था. तो ऐसे ही मैंने मतलब जितना भी आई थिंक 62 में से अगर मेरे 217 आई अटेम्प्टेड 63 क्वेश्चंस, अगर 217 है तो माय हिट रेशियो वुड बी 56-55, तो मतलब 6-7 क्वेश्चन गलत हुए. तो आई थिंक ठीक है. और जितना मतलब अब कट ऑफ से पता चल रहा है कि एक्चुअली डिफिकल्ट था. हमें तो डिफिकल्ट, क्योंकि जो पेपर दे रहा है उसका तो तुम नहीं ले सकते ना कि वो कह रहा है डिफिकल्ट है इसलिए. अब पता चल रहा है कि हाँ ठीक है पेपर डिफिकल्ट था, तो ठीक है, अच्छा पेपर गया. और वो इसलिए गया क्योंकि स्टैटिक जीके और इन क्वेश्चंस को मैं हिट कर पाया 2 सेकंड में. दीस क्वेश्चंस गेट हिट, आइदर यू नो इट, आइदर यू डोंट. मैथ्स एंड LR आर समथिंग. LR बहुत डिफिकल्ट आई थी, LR डिफिकल्ट थी. सम क्वेश्चंस वर अनसॉल्वेबल एट दैट पॉइंट एंड इन दैट प्रेशर. तो जो स्टैटिक जीके आर चेरी पिकिंग्स. अगर वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए तो you have a question in front of you in 2 seconds, and that changes the game. It's an either you know it or don't know it question, and then you can extract time towards maths, towards solving maths as well. Acha, this same theory, same strategy for current affairs, static overlaps for MHCT, everything is the same. I believe MHCT में बस एक law का portion, legal का portion. और इस बार उन्होंने भरा था थोड़ा.
Right. जैसे मैंने उनका मॉक दिया था, आपका मॉक दिया था, उसमें तो मेरे मार्क्स नहीं आए। आपके मॉक में तो पता नहीं मैं था थर्ड, बट फिर मार्क्स ही नहीं आया था। मैंने कहा अबे यार इतना डिफिकल्ट पेपर होता है। फिर मैंने उनका मॉक दिया, अटल वाला, अटल मॉक। I मतलब मैंने नहीं अटल नहीं, वो जो they gave on their site, they gave 4 to 5 mocks on their site। मैंने अपने एक दोस्त से उसकी साइट ली, मैंने खरीदे नहीं, उसने खरीद रखे थे, तो मैंने 5th मॉक दिया एंड इट वाज कंपैरेटिवली इजी। लीगल वही था, question statement and then reasonably applicable to this, but in the paper there were some questions, जैसे एक जजमेंट के बारे में पूछा हुआ था, इंदिरा सोनी या some related to जो जनरेट इसके रिलेटेड हुआ है, privacy related पुट्टस्वामी privacy और 370 related। I think there is this one judgment, I'm not अभी दिमाग, शायद some girl 2015 में एक जजमेंट है सर, जिसमें एक श्रेया सिंघल 66 AIT IIT लॉ के ऊपर ऐसे क्वेश्चंस आ रखे थे। और वो क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो रहे थे क्योंकि जो उसमें एंड था ना, जैसे यूनियन ऑफ इंडिया से एंड होता है अगर द एंड वाज अलग अजीब, तो यू कुड आल्सो डिसाइड द क्वेश्चन बाय लॉजिकल रीजनिंग कि ऐसे तो लॉ खत्म ही नहीं होता, तो उससे भी आंसर्स बन रहे थे, बट वो तुम्हें तब दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वो वैसे भी सॉल्व हो रहे थे, बट लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन थे, जैसे ये तो कॉमन क्वेश्चन है ओडिशा और इसमें व्हाट इज दिस MHCT और ओडिशा में एक कॉमन क्वेश्चन है इसको लेके, पुलिस की वर्किंग को लेके क्वेश्चन आया हुआ था। अच्छा। जैसे उसको रिटन डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं जो कोर्ट में फाइल होता है। अच्छा ठीक है, अब आई डोंट रिमेम्बर, अभी मेरे को ऐसे दोनों में सेम क्वेश्चन। अब ये तो बेसिक जीके भी है, लीगल भी है, बट अगर एक पेपर में हिट हो गया और उसमें तुमने गलत भी करा है, तो नाउ यू नो द राइट क्वेश्चन इन द अदर पेपर। तो कई बार बहुत कॉमन क्वेश्चन आ जाते हैं स्टैटिक जीके के। दैट इज व्हाट इज वी कॉल एज लीगल स्टैटिक जीके। उसके लिए द स्ट्रेटजी इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, तो वो तो करनी ही करनी है। दैट कट्स अक्रॉस एवरी एग्जाम। सीयूटी पीजी में भी आर स्क्वायर सीएसपीओ भी आया था, आर्टिकल 15 के ग्राउंड्स आए थे, राइट। Polity, then you have to do basics of contract, basics of criminal law, basics of torts, ubi jus ibi remedium, damages, voluntary non-fit injury, ये सब basically आपका पढ़ा होना चाहिए। And पिछले साल तो मैंने ऑनलाइन वाले लीगल मॉड्यूल से ही काम निपटवा दिया था कि ये दिस इज मोर देन इनफ, शुरुआत के लेक्चर्स। ओके, एंड देन बेसिकली वी मूव ऑन टू लॉजिकल एंड मैथ्स। हमारा मैथ्स का लेवल कैसा था? बिकॉज़ लॉ स्टूडेंट्स आर यूजुअली लाइक भाई मैथ्स आई विल जस्ट ऐड वन मोर पॉइंट। जैसे आपने कहा ना कॉन्स्टी, जैसे आपने वो लिस्ट बनवाई थी, HC इसको अपॉइंट करता है, राइट, तो वो क्वेश्चन आया था who appoints the governor। standard fair पॉलिटी है। HC of वो नोट्स ना फेंक देना आगे हर पेपर के लिए आने हो। हाँ, और वो बट वो क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है ना सर, क्योंकि गवर्नर को वो सोचते हैं लोग कि प्रेसिडेंट, इसीलिए क्लास में मार्क कराया जाता है कि ये तो फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है, इसमें एक बंदा गलत मार्क कर सकता है। तो दैट वो कराना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैंने तो लिस्ट बना ली थी। अब मेरे पॉलिटिकल नोट्स में कौन किसको अपॉइंट करता है, किसको रिजाइन करता है, किसको करता है, आई मेड नोट। आपने ही बनवाई थी। और मैंने उनका एक कलेक्टिव वो बना लिया था टेबल, एंड दैट हेल्प्ड। एनएलसैट 25 का मैं बताता हूं, नॉट 26। एनएलसैट 25 आस्क्ड 8th शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेज दे रखी है, आर्टिकल 1 इंडिया, दैट इज भारत। ये सब भी मतलब इफ दे वांट टू, बिकॉज़ दिस इज जनरल अवेयरनेस, दे कैन इवन गो प्रीएम्बल में ऑर्डर क्या दे रखा है, बिकॉज़ दैट इज 11th 12th की जनरल अवेयरनेस। You can't really skip it. I'm not saying that you need to go UPSC level in polity, but for all exams you need to do basic constitution and polity, then legal static GK also, even in the NLSAT, even if you do not require it explicitly, but it certainly develops your mind कि अच्छा इसको ऐसे नहीं, इसको यहाँ पे मतलब आप वैसे काम कर सकते हैं। NLSAT के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बाकी क्या बोलते हैं स्टूडेंट इंटरव्यूज पढ़े हुए, you can explore on the channel. Then the third thing is static GK current affairs. We have learned static GK. We try to limit it is an endless ocean, but go through the PYQs, scan through the major topics and cover out those. Like युजुत्सु हमने क्लास में इसलिए कवर करा हुआ है क्योंकि पिछले साल ये लोग महाभारत के अंदर गए थे और रामायण के अंदर भी गए थे। सो KBC का आप लगा लो 3 लाख 6 लाख रुपए के क्वेश्चन वाला जो लेवल जो है, जो पूछता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अ क्वेश्चन कि वो उस नाव चलाने वाले का नाम क्या था जिन्होंने श्री राम को नदी पार कराई थी। ये केवट जी जो हैं ये CUET PG में आ सकते हैं। इट इज अ स्टैंडर्ड थिंग, बिकॉज युजुत्सु इज द कौरव है ना, हु बेसिकली ट्रांसफर्ड ओवर। तभी हमने इसको यू भी याद रखा था क्लास में, मुझे तो वैसा वाला सिनेरियो था। एंड देन वी टॉक अबाउट इंग्लिश का क्या करें जी? इंग्लिश मतलब सर आई तो हैव बीन मतलब आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, और मतलब एक लेवल ऑफ इंग्लिश ओवरऑल ठीक थी शुरुआत से। लाइक आई हैड अ गुड
basic understanding of English. बाकी the questions they ask are not that difficult. एक तो DU में they do not, MHCET में they do not. The only paper that you have to be a bit careful about English, एक तो NLSAT में they don't ask about English. But NLU Odisha has not this time, but इससे पिछले दो पेपर में इंग्लिश का लेवल था कि इट वाज समवॉट डिफिकल्ट. कंजंक्टिव, एडजेक्टिव, ये वाले ग्रामर वाले कॉन्सेप्ट भी हार्ड नहीं है, बट वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो तो वो निकल जाते हैं. तो उनके 4-5 लिस्ट बनाई थी मैंने और उनकी YouTube वीडियो देख ली थी. राइट. उनकी बस 4-5 टॉपिक की और उनकी YouTube वीडियो देख ली थी, और अगर वो एक बार समझ आ जाए तो वो बहुत इंट्यूटिवली सॉल्व हो जाएंगे. तो बस उनकी थोड़ी सी प्रिपरेशन है. और इस बार तो उन्होंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे दी सीधा. हां, इस बार ये उधर उस थोड़ा बहुत आपकी वो idioms की लिस्ट है. That is enough. 100 to 150 idioms. एक दो idiom पूछते हैं वो. Right. बाकी इस बार तो उन्होंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे दिया. इस बार थोड़ा I don't know if I could say. NLU Odisha का पेपर थोड़ा, क्योंकि 120 में से 115 5 क्वेश्चन उनके डिलीट हो गए. पता नहीं क्या चक्कर. 4-5 क्वेश्चन में उन्होंने 2 आंसर दे दिए. फिर जो उनका एक फर्स्ट पैसेज दैट केम टू अस वाज अ डायरेक्ट कॉपी फ्रॉम अ प्रीवियस ईयर NLSAT क्वेश्चन. तो हाँ इट वाज. एंड बाप रे बाप, इट्स नॉट राइट, क्योंकि जो NLSAT की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो फिर ये इजी पिकिंग है कि भैया क्वेश्चन भी वही है, पैराग्राफ भी वही है, पढ़ू भी क्यों मैं सीधा सॉल्व कर दूंगा. बट इंग्लिश थोड़ी सी, आई थिंक NLU ओडिशा के लिए थोड़ी सी इंग्लिश अगर करनी थोड़ी सी चाहिए. बाकी CUET PG वगैरह मैनेज हो जाता है. अगर कोई जैसे कोई दिल्ली में मेरे मतलब आई एम नॉट गोइंग टू बी, हो ही जाएगा नहीं. अगर कोई मेरे जैसे 12वीं तक इंग्लिश स्कूल मीडियम स्कूल में पढ़ा है एंड ही हैज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, हो जाएगा. अगर नहीं है तो देन यू नीड गाइडेंस. एंड आई थिंक इट इज इनफ कि 1-2 महीने में आराम से बन जाए और एक बेस बन जाए जिससे तुम 5 से सॉल्व कर सको. और जीके का भी मतलब स्टार्टिंग जीके आई थिंक बुक मिल जाती है, बट वो बुक खुली नहीं जाती है. मेरे को भी न प्रीवियस कोचिंग में बुक दे दी थी, बट वो बुक नहीं खत्म होती है. तुम 3 दिन पढ़ोगे, 4 पेज पढ़ोगे, थक जाओगे. गेट अ टीचर. आई एम नॉट सेइंग, आई वुड प्रेफर, आई वुड रिकमेंड सर, बट गेट अ टीचर हु एक्चुअली गेट्स यू टू राइट. और वो बताए कि मतलब एक तो कॉन्फिडेंस आता है कि somebody with an experience of like सर 10 साल का एक्सपीरियंस वो बता रहा है. तो जब तुम उसको लिखते हो और फिर वो नोट्स जब क्रिएट होते हैं ना, एक तो वो बुक से कम होते हैं, एक तो तुमने खुद लिखे होते हैं, दैट एक्चुअली हेल्प्स इन स्टार्टिंग जीके. यू मतलब दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन माय परसेप्ट, मतलब मेरा एक्सपीरियंस कि मैं अगर मेरे को कोई बस बुक दे दे, इट्स नॉट, मैं नहीं पढ़ सकता. मेरे को कोई मतलब कोई लिखवा दे करंट अफेयर्स, देन कि हाँ एक कॉन्फिडेंस आता है और एक वो थोड़ा सा शॉर्टन हो जाता है सर कि ये अब एक एक्चुअल अमाउंट है जो मैं पेपर से पहले रिवाइज भी कर सकता हूँ. पेन चलेगा तो याद रहेगा, एंड ऑफ स्टोरी. बाकी तुम जितने नोट्स टेलीग्राम पे भर भर के PDF पढ़िए, लूसेंट की PDF है, जो करना है कर लीजिए. पेन चलेगा तो दिमाग में रहेगा. Static GK and Consti Polity, everything, it cuts across all examinations. So you want to attempt even the UPSC tomorrow, these basically form the core foundation. Now we come to logical and maths. Maths का क्या level था when you started out? Because students of law really face a problem. Maths, I had maths in 11th 12th. But मैं maths में प्री बोर्ड तक तो फेल ही हुआ हूँ. Right. ठीक है, उसके बाद I sat down and studied और I had decent marks. Hats off to his honesty, नहीं तो लोग बहुत ज़्यादा swag मारते हैं. नहीं प्री बोर्ड्स तक I failed. उसके बाद I sat down, I had decent marks, 83 थे मेरे. मेरी पूरी परसेंटेज डाउन कर दी थी मैथ्स ने 83 पे. But I had decent marks. और उसके बाद मैंने पॉल साइंस देखे, मैथ्स से छुटकारा पाया. My parents told me कि इकोनॉमिक ऑनर्स लो. मैंने कहा मैथ्स नहीं देख सकता वापस. बट इसमें जो मैथ्स है वो तभी लॉ कर रहे हैं, तो MBA कर लेते. फेयर इनफ, फेयर ड्यूज. बट फिर वो इसमें जो मैथ्स आती है वो 10 तक आती है. अब उसमें बेसिक वो है कि स्पीड चाहिए. द मैथ्स इज इजी, अगर तुम बैठोगे 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा. द ओनली इशू इज यू डोंट हैव 5 मिनट्स, यू हैव 2 to 3 मिनट्स एट मैथ्स. प्रॉब्लम ही मैथ्स है. और ये सिर्फ CUET PG में आता है मैथ्स, बाकी सब में तो LR है. तो बस उसमें वही है कि एक तो देखो तुम्हारा टॉपिक कौन सा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि भाई अगर तुम 3-4 महीने पहले बैठोगे तो तुम नहीं क्रिएट कर सकते कि तुम स्क्रैच से तुम जो टॉपिक्स तुम्हारी वीक है उनको ऐसा कर लो कि 2-3 जो तुम्हारे टॉपिक जो तुम्हें समझ आ रहे हैं, अगर तुम 3-4 अगर 1 साल पहले बैठे हो फिर तो तुम आराम से बेस सॉल्व कर सकते हो. तो बेस क्रिएट करो और फिर ट्रिक्स भी नहीं, अगर जल्दी कैसे हो रहा है, जितना जल्दी हो सकता है. हर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है. यू आर नॉट सपोज टू स्कोर 300, यू आर सपोज टू स्कोर अ डिसेंट अमाउंट दैट गेट्स यू इनटू द कॉलेज. स्कोर टेक दोस क्वेश्चन, हर टॉपिक, क्योंकि तुम्हें नहीं पता किस टॉपिक से इजी क्वेश्चन आएगा. उन टॉपिक से इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, आगे बढ़ो. उन टॉपिक से इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, आगे बढ़ो. अगर तुम हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन CUET PG मैथ्स के? CUET PG तकरीबन 25 odd, मतलब इन द सेंस मैथ्स लॉजिकल मिला के बोल रहा हूं, बट 15 इफ यू कैन गेट
if you're not good at maths, if you're like a student who took law, who took arts because you're not good at maths, if you score 8 to 9, 8 are solvable buddy. Exactly. 8 तो मतलब अगर हम लगाएं 15 ठीक है, मुझे भी पता है नहीं होते, हाँ, because नहीं। फाउंडेशन वीक है, बट अगर हम 8 के टारगेट करें, लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड रेशियोज की क्लास दिस ईयर, I'll put that out as a demo lecture as well. I plan to. उसके अंदर हमने ये कि तो यहाँ पे कई लोग जो मैथ्स के धुरंधर यश कनव अभी उनसे भी बातचीत करनी है, वो ये तो बड़ा सिंपल। अब मुसीबत ये दूसरे के लिए तो नहीं है। अब इस साल आया था अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर्स इन देयर असेंडिंग वैल्यूज 1/3, 1/2, 1/8। ये अगर ये तो सॉल्वेबल है भैया। ऐसी भी ये कौन सी मैथ्स है जो मतलब जो सर्कल बना के वो बन जाएंगे। मतलब ये तो सॉल्वेबल है। So 15 छोड़िए ना, 15 नहीं होते तो 8 तो हो ही रहे हैं। परफेक्शनिस्ट तो नहीं बनना। 300 में से 300 अगर तुम्हारा अलग एम है भाई, कुछ मतलब नहीं, मतलब फर्स्ट क्लास ओलंपियाड में गोल्ड मेडल भी नहीं मिला। हाँ, अब मतलब ठीक है, AIR 1 200 प्लस चाहिए। हाँ 200 Realistically 200 प्लस 200 प्लस 200 इस बार 200 प्लस है, वैसे 205 210 का टारगेट रखें। 213 was the CLC cut off for 25. This year it's fallen down to 200. मतलब अब अगले साल इजी पेपर आ गया तो वापस थोड़ा 10-15 मार्क्स बढ़ जाएगी। Actually हुआ क्या है, I'll tell you हुआ क्या है इसके अंदर भी। I wanted to make a video. हुआ क्या है, the cut off usually when the paper turns out to be hard usually drops by 5-7 marks. So it could have been 208ish, 207ish. Now problem is all the top talent, firstly they opt in for NLS, NLU Odisha और MHCET, ये लोग वहाँ निकल जाते हैं। So the cut off is falling, मतलब has fallen again. Next year आप फिर से समझ के चलिएगा that it can be around 210 is the base level, बाकी आपकी किस्मत। हाँ। बाकी आपकी किस्मत, because IP University has opened a 3-year LB program, CNLU has opened up a 3-year LB program, DSNLU, so everyone wants Sikkim. that NLU tag basically associated with ये भी उसी टारगेट में है। बट GLC मिला हुआ है इनको, मतलब at rank 1 in MHCET, 1 out of 4 whatever it is eventually, but I mean that's like tie breaker पे ही है, खैर, बट GLC मिला हुआ है तो हर आदमी वहाँ जा रहा है, तो इसलिए कट ऑफ बेसिकली थोड़ी सी नीचे आ रही है DU की, बट स्टिल 300, मतलब 60% of 300 is 180, 70% is 210, so you're looking at like a 65ish%. That's still high, buddy, for a law entrance. And it's not an easy paper. It is not an easy paper. CLC will forever hold a legacy value, at least brand name wise, I would say. I remember जब मैंने coaching शुरू करी थी, in that the earlier coaching I had students, क्योंकि मैंने February शुरू कर दी थी, early शुरू कर दी थी, मतलब पहले तो थोड़ा भटका, that is not the main point is I had a student there जो मेरे से 1 साल बड़ा था, and he was giving the paper that year itself, and he had such a strong hold on maths कि जब teacher question लिख रहा होता था he used to solve it, and then I saw him again इस साल पेपर देते हुए। अच्छा, तो मतलब बस मैथ्स से नहीं होगा, हाँ, स्टैटिक चाहिए, तो लॉजिकल मतलब चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं होगा बेसिकली। ये जो इजी पिकिंग्स क्वेश्चंस होते हैं जिनको लोग जनरल रीजनिंग और ये कह के बनाते हैं कि ये तो कॉमन सेंस से निकल जाएंगे, ये चाहिए, ये तुम्हें पता होना, क्योंकि जब यूथ से देखेगा तो फर्स्ट थिंग अ पर्सन वुड से कौरव तो नहीं होगा, कौरव तो सब पता है, पांडव भी नहीं होगा, पांडव भी 5 पता है, द अदर 2 ऑप्शंस वुड सीम लाइक मार कर क्या। हाँ, ये एग्जैक्टली वो ये तो यूत्सु, क्योंकि उसका जो बेटा था गंधर्व राज, उसका who had द्रोणाचार्य beef with, sorry not beef with, लड़ाई इनके साथ ही उनका बेटा, उनका बेटे के नाम से बहुत कॉमन हो रहा है, तो उनका बेटा अश्वत्थामा आ जाएगा, अश्वत्थामा आ जाएगा, या युयुत्सु, मतलब कुछ गांधार नरेश का बेटा आ जाएगा, मतलब वो इन दो, मतलब तब वो दिमाग यही चलेगा कि कौरव पांडव तो नहीं होंगे, वो 4 मार्क्स दे रहा है वो क्वेश्चन। तो मतलब ये जो इजी इंग्लिश जीके जो क्वेश्चंस आंसर पॉइंट्स दे रहे हैं, ये बिल्कुल उठाओगे। मुझे याद है भाविनी थी हमारी क्लास में, देयर वाज दिस स्टूडेंट, और मुंह बना रही थी वो, महागे सर ये क्या करना पड़ेगा। मैं कहा देखियो अभी आएगा, जब पेपर में जब खड़े होंगे ना, जब ये महाभारत और ये रामायण के क्वेश्चन जब आएंगे तब मजा आएगा तुम्हें देखने में। And same thing with computers is Control C, Control Z, this that, URL का full form, very standard questions. So the following is not a browser. These are ये PYQ ही घूम रहे हैं। कंप्यूटर में अगर आप PYQs ही देखेंगे तो PYQ ही घूम रहे हैं। But for the 3-year LB ecosystem, I would say, because there's no one central paper for these exams, even though CVT-PG did try to make one and then they went into the general entrance, now there is no law entrance there. I would say कि attempt all exams so that you have backup.
NLS की जो 40 सीटें ही हैं out of you are competing barely on 40 seats. That's what I told you guys throughout the year. होता है नहीं होता है मतलब क्योंकि it is a very opaque admission process. You can't even sit and analyze कि what went wrong, what can we do Exactly. better. I believe that we did the best this year. And secondly, especially with Akshat also, I mean, he gave it his all. नहीं होता, then you have options to fall back upon: GLC, CLC, NLU Odisha. And then depending on wherever you wish to basically head out towards. And CLC के साथ of course LC1, LC2. कई लोगों को आजकल DU नहीं रास आ रही कि हम नहीं जाएंगे DU, no worries. GLC, Then you have ILS. GLC, then you have NLU Odisha, then you have IP University, you have CNLU. सारे पेपर दीजिए. अगर आप एक पेपर के भरोसे रह जाएंगे, given this country's education landscape and where we are headed towards, given the fake EWS certificates, given who is using, God only knows what they are up to in the exams, given very opaque admission processes as well, you can't rely on one exam. So, acha, except for NLSAT, which requires a bit of specialized preparation, even the static GK overlaps there. All other theory overlaps there. Maths is specifically needed in CUTPG. Rest, static, current affairs, English, logical. It cuts across every other damn exam that exists in the 3-year LV ecosystem. और उसके साथ एक NLSAT का एक separate जैसा basically module है ना? In conclusion, if you want to say anything, and then we basically conclude it. Alright, best of luck. हाँ. Especially अगर कोई जेम है जनरल मेल तो मतलब फिर तो लग जाओ भाई. It's hard out here. हाँ. But ठीक है, prepare. और क्या मतलब the thing is you मतलब जब दिखता है कि the people who are sitting next to you and they get in with lower marks than you, it seems a bit लगता है कि बुरा लगता है थोड़ा सा. But after all जब ये if after all everything's done and dusted, जब you'll be at a position, मुझे भी नहीं पता, but I'm hoping whatever you have worked for and whatever you have strived for, worked hard, you'll succeed and everything will all work out. और जो भी preparation डाली है वो कहीं ना कहीं it will bear fruit. Thank you. ठीक है जी. तो on that note we conclude this session. Wishing you folks all the very best. Do take very good care of yourself. May God bless you. Start out in July August में आप तैयारी अपनी करनी शुरू कर दीजिए. And then March onwards तो आपके exams ही हैं, so not much time gets, you have to wrap up the core majority syllabus by December, Jan, and then basically hope to secure a seat. Wishing you folks all the very best. Take care. Bye.